Hello friends and welcome back to my channel. In this video we will continue our previous video in which we were discussing about the law of demand. According to law of demand, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Law of demand के according price और quantity demanded में inverse relationship होता है, means if the prices of any commodity increases, the quantity demanded of that particular commodity decreases. अगर किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी. दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड सेज. यही वो है जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है. एंड वी हैव सीन इन दैट वीडियो दैट लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस quantity demanded decreases and when the prices decreases quantity demanded increases. And we have seen that the demand curve is a downward sloping curve, but it is not like that demand curve is downward sloping in all the cases. There are certain situations where the demand curve is upward sloping, or we can say that there are certain conditions where the law of demand is not applicable and where the law of demand does not hold. जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है या जहां पे लॉ ऑफ डिमांड की जो एप्लीकेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ना होके अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाता है. उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. So in this video we will be discussing about the exceptions to the law of demand. Exceptions means वो चीजें जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है या फिर जहां पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो उसकी जो वैलिडिटी है वो नहीं रहती है. और इस केस में फर्स्ट हमारे पास जो एक्सेप्शंस है वो है इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स स्पेशली द गिफन गुड्स. व्हाट? द गिफन goods. Giffen goods are the inferior goods with very high negative income elasticity. The concept of this elasticity will be discussed. We will discuss in some other video. हम किसी दूसरी वीडियो में इस चीज को डिस्कस करेंगे. But here I want to tell you that this negative income elasticity means if with the increase in the income, if the demand for any particular commodity, if that demand decreases, अगर income increase होने के साथ अगर किसी particular commodity की जो demand है वो decrease होती है तो that means that commodity has a negative income elasticity, right? तो गिफन गुड्स जो है इनकी भी जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो नेगेटिव होती है. एंड दीज गुड्स आर गिफन गुड्स बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ गिफन गुड वाज गिवन बाय सर Robert Giffen, right? Sir Robert Giffen, and after his name these goods are called as Giffen goods. Giffen goods are the inferior goods with very high negative income elasticity, and these goods are consumed mostly by the low paid wage earner groups. Who? Low paid wage earners, right? So in this case, or these workers ये क्या करेंगे, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है तब भी ये उसी इंफीरियर गुड को ही कंज्यूम करते रहेंगे इवन एट द हायर प्राइसेस, क्योंकि उनके लिए जो दूसरे प्रोडक्ट है वो स्टिल दे आर द कॉस्टलियर देन दीज गिफन गुड्स. जो गिफन गुड्स है उसके अकॉर्डिंग जो दूसरे गुड्स हैं जिनके प्राइस ऑलरेडी ज्यादा थे वो अभी भी इन लोगों के लिए सुपीरियर गुड्स हैं. तो इसीलिए जो लो पेड वेज अर्नर्स होते हैं वो जिन गुड्स का ये या फिर जिन इंफीरियर गुड्स का जो इन लोगों के अकॉर्डिंग जो इंफीरियर गुड्स नहीं होते बट एक्चुअली दे आर इंफीरियर, तो ये even at the higher prices these workers are continue to consuming those goods. तो ये higher prices पे भी उन गुड्स की हायर क्वांटिटी को डिमांड करते रहेंगे. तो इस केस में क्या होगा दैट विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस द क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीजेस. तो क्या होगा, जो हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ना होके अपवर्ड स्लोपिंग होगी, राइट? एंड इन दिस स्टोरी the second exception to the law of demand is Veblen goods. Second is Veblen goods.
these are the social prestige goods. These goods are the social prestige goods, and it is the T. Veblen who have given the concept of these Veblen goods. And according to him, अगर जो प्रेस्टीज वाले जो गुड्स होते हैं उनके अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो लोग उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है लोग उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा देते हैं। जो डिमांड करने की उनकी जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स। एज एग्जाम्पल एज डायमंड, राइट। तो डायमंड की प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी जो डिमांड है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दीज गुड आर दे शोज द सोशल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। कि अगर किसी के पास डायमंड ज्यादा है तो उसके इसका मतलब ये है कि उसका स्टेटस भी ज्यादा है, तो इसीलिए लोग अपना स्टेटस शो करने के लिए दे डिमांड द हायर क्वांटिटी इवन एट द हायर प्राइसेस। तो इस केस में भी क्या होगा, जो हमारी डिमांड कर है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर होगी इवन इन द केस ऑफ Veblen goods also, right? Third exception is the emergency like war या curfew, right? In the case of war and curfew, people were of the view that there will be a shortage of the necessities. जो गुड्स हैं, जो कमोडिटीज हैं, उनकी शॉर्टेज ना हो जाए, इसलिए लोग क्या करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी वो जैसे वॉर की सिचुएशन या कर्फ्यू की सिचुएशन, तो वो क्या करते हैं अगर प्राइसेस बढ़ भी रहे होते हैं चीजों के तो भी वो क्या करते हैं डिमांड ज्यादा करते हैं या क्वांटिटी डिमांडेड उस केस में भी इंक्रीज हो जाती है। तो विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीजेस when in the case of wars and curfew or in case of the emergency. Next exception is the demonstrative effect. This is related to the consumption, and the concept is also related to a consumption theory named as the relative income hypothesis. जब हम consumption theories वाली वीडियोस बनाएंगे उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, बट नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जो पर्टिकुलर कोई कंज्यूमर है वो अपने जो नेबर्स होते हैं उनको उनके कंजम्पशन पैटर्न को इमिटेट करना शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू दिस डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। कि मैं हूं, अगर मैं किसी अच्छी सोसाइटी में रह रहा हूं या फिर मैं किसी को फॉलो करता हूं, लाइक मैं किसी का फैन हूं, किसी स्टार का या फिर किसी क्रिकेटर का या फिर किसी का भी, मैं उसको अगर फॉलो करता हूं तो आई हैव टू एडॉप्ट, या फिर मुझे मतलब ये होता है कि मैं जैसे वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड या जैसे वो अपना डेली रूटीन रखता है मैं भी वही करने की कोशिश करता हूँ। और उस केस में क्या होता है कि आई डिमांडेड हायर क्वांटिटी इवन एट द हायर प्राइसेस। क्या उस केस में भी यही होगा, मैं हायर प्राइसेस पे भी हायर क्वांटिटी को डिमांड करूंगा जब मैं अपने नेबर्स को या फिर किसी और पर्टिकुलर कंज्यूमर को अगर मैं उसको कॉपी करूंगा या फिर मैं उसको इमिटेट करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें भी यही होगा कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ना होके अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगी, क्योंकि विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो हमारा एक्सेप्शन है इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज इन प्राइसेस। एक्सपेक्टेशंस of rise in prices. If there are the expectations of rise in prices, इस केस में भी क्या होगा कि लोग ये सोचेंगे कि यार प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि और ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाए, इसीलिए वो क्या करता है कि जो भी प्राइसेस है अगर प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं तो तब भी वो क्या करता है कि क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करनी शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइसेस। उनको लग रहा है कि आगे और भी प्राइस बढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूं, लेकिन अगर मुझे पता चले कि ब्लैक मार्कर के जो प्राइसेस हैं वो कल से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो मैं आज क्या करूंगा, अपनी डिमांड को इंक्रीज कर दूंगा और मैं हायर प्राइसेस पे ही इसको ज्यादा अमाउंट में खरीद लूंगा। तो उस केस में भी क्या होगा कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ना होगी, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगी, क्योंकि विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ मार्कर आई स्टार्ट टू डिमांड हायर क्वांटिटी ऑफ द मार्कर। So these are the exceptions to the law of demand, that in case of given goods demand curve is a upward sloping curve,
and in case of Veblen goods, demand curve is an upward sloping curve. In case of any emergency, people start to demand higher quantity even at the higher prices. In case of expectations also, the demand curve is a upward sloping curve, and in case of demonstrative effect, the demand curve is a upward sloping curve. So these are the exceptions to the law of demand curve. Okay, in the previous video, we have also seen that according to the law of demand, that by keeping other factors constant, law of demand shows us the relationship between price and quantity demanded of a commodity. But what if we take into consider the prices of other goods? अगर हम अदर गुड्स के प्राइसेस को भी कंसीडर करते हैं, तब हमारी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट? सो अवर नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है, विल सी द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ अदर गुड्स ऑन डिमांड. So the demand and price of other goods, right? Demand and price of other goods, and we can see or we can write the demand for X is a function of price of other commodities or other goods, right? We can write the demand function as, because and in general we have this demand function is a function of price of X. In general we have this of the demand function, but in this case when we are considering the prices of other goods, we can write the demand function as like the demand for X is a function of price of other goods. इस केस में क्या होगा? In the previous video we have also seen that there are two type of goods, there are two type of related goods. One are the substitute goods and the other are the complementary good, right? One is substitute and other one are complementary good. Complementary goods. So substitute goods are those goods which we can use to an alternative, which we can use on an alternative to satisfy our single want. अगर हम किन्हीं दो कमोडिटीज को अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं अपनी किसी एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, या अगर दो कमोडिटी में से कोई भी एक कमोडिटी अगर हम कंज्यूम करें और हमारी सेम जो वांट है वो अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो दैट मीन्स बोथ द कमोडिटीज आर और बोथ द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट. अगर हमारे पास दो गुड्स है एक्स एंड वाई, अगर मैं x को कंज्यूम करता हूं तब भी मुझे 2 यूनिट यूटिलिटी मिलती है, अगर मैं y को कंज्यूम करता हूं तब भी मुझे 2 यूटिलिटी मिलती है. तो इसका मतलब दोनों हमारे सब्स्टिट्यूट हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच वी हैव टू यूज साइड बाय साइड, जिनको हमें एक साथ यूज करना पड़ता है, हम अलग अलग उनको यूज नहीं कर सकते. जैसे पेट्रोल और कार, या फिर पेन एंड इंक, या फिर टी एंड शुगर. दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हम अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड फॉर द कार डिक्रीज हो जाएगी, और अगर पेन के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड फॉर इंक हमारी कम हो जाएगी. बट इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इफ द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, डिमांड फॉर वाई ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट? एंड इफ द प्राइस ऑफ एक्स decreases, demand for y is decreases. So in case of substitute, demand for a substitute good moves in the same direction with the change in the prices of other good. Substitute good के केस में क्या होता है कि जो डिमांड है, जो चेंज इन द डिमांड है एक सब्स्टिट्यूट गुड में, वो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के चेंज की डायरेक्शन में ही मूव करेगा. यानी अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. और अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है तो उसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड फॉर द कार डिक्रीजेस, मींस द डिमांड फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड. मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस में अगर इंक्रीज आ रहा है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड में डिक्रीज हो जाएगा, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट? So this is the case of substitute good.
इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं. एज on x-axis we are measuring price for like tea and coffee, and here we are measuring demand for tea and coffee, and this is the price for tea and coffee, and this is our initial quantity demanded, that is D, T or C, right? And now suppose that the price of tea increases this much, yani PT, and now the demand for tea reduces by this amount, T dt. This much of demand is reduces by with the increase in the price by PT. अगर इतना प्राइस हमारा टी का इंक्रीज हो रहा है तो जो डिमांड है टी की वो इतनी डिक्रीज हो जाएगी, राइट? नाउ बिकॉज कंज्यूमर्स आर कंज्यूमिंग लेस अमाउंट, दैट्स व्हाई दे आर रिसीविंग लेसर यूटिलिटी और दे आर ऑब्टेनिंग, उनको अभी जो यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन है वो भी कम मिल रहा है. तो ये जो हमारा लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन है इसको कवर अप करने के लिए पीपल स्टार्ट टू कंज्यूमिंग मोर कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, एंड नाउ द डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीजेस एंड दिस विल बी हियर. दिस इज द डिमांड फॉर कॉफी, राइट? तो अभी हमने देखा कि प्राइस बढ़ने से टी का डिमांड फॉर द कॉफी इंक्रीज हो जा रही है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट. यानी अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाएगी. तो हम ये बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिमांड फॉर अ सब्स्टिट्यूट गुड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स. बट इफ X and Y are complementary goods. X we take as petrol and Y we take as car. In this case, the change in the demand moves in the opposite direction with the change in the price of other complementary good. मीन्स जो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज आएगा, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जो डिमांड है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी. लेट्स सपोज कि अगर प्राइसेस ऑफ पेट्रोल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड फॉर द कार हमारी डिक्रीज होगी, राइट? अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी. बट इफ द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, डिमांड फॉर द कार इंक्रीजेस, राइट? सो वी हैव सीन दैट in case of complementary good, demand moves in the opposite direction with the change in the prices. So this is the case when the related goods affects the demand of a commodity. Now come to the income effect on the demand and income. In case of normal goods or inferior goods, right? अगर नॉर्मल गुड्स है तो इनकम के चेंज होने से डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा, और अगर इंफीरियर गुड्स है तो इनकम के चेंज होने से डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा. नॉर्मल गुड्स अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ, जब हमने गिवन गुड्स के बारे में बात की थी कि नॉर्मल गुड्स are those goods which are having the positive income elasticity. मीन्स अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इन गुड्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी. बट इन केस ऑफ inferior goods, with the increase in the income, the demand for the goods decreases. मतलब इनके केस में क्या होगा, इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, बिकॉज दे आर हैविंग द नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, तो इनके केस में क्या होगा, इनकम इंक्रीज होने के साथ इनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो वी कैन शो इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, विद द इंक्रीज इन द, नाउ सपोज we are demanding this much of any commodity, like commodity X, and this is our income. On X axis we are measuring income, and on Y axis we are demanding quantity. So at income Y1 we are demanding
x1 quantity, but when the income of the consumer increases, the demand is also increases, right? As the income increases to y2, demand also increases to x2 in case of normal goods. So with the increase in the income, demand for the commodity also increases in case of normal good. But if we talking about, or if we talk about the inferior goods, those having the negative income elasticity, here we are taking quantity, x एक्सिस पे हमने quantity लिया है और y एक्सिस पे हम लोग income को मेजर कर रहे हैं, and this is our initial quantity demanded x1 at y1, राइट? तो अगर हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा था